2, 3. A student, now I am going to start our first experiment in basic electronics. The subject code of basic electronics 4 times 2, 5. So in this subject here is 18 experiment, but we have to perform in the lab only 14 experiment. So program outcomes is ability to apply the knowledge of basic mathematics, science and engineering to solve the engineering problem. Second POS, ability to plan and perform the experiment and practice and to use the result to solve the engineering problem. Then function effectively as a leader and team member in diverse multidisciplinary team. Then engage in the independent and lifelong learning activities in the context of technological change in the computer engineering. Then practical outcome. In this experiment, identify the controls of CRO, identify controls of the single generator. So students, in this experiment, we have to show the sine wave and square wave. We have to study the different type of sine waves, sinusoidal waves, square waves, and so on. But in this experiment, we have to show the sine waves by using the CRO. So student, this is the function generator and this is the CRO. In CRO, we have to show the sine wave. So this is the sine wave. Student, listen here. This is the sine wave, and this sine wave we have to use in this way. Suppose this we have to goes from one place to another place in vertical division, and this is in the horizontal division. So this sine wave, we will take reading. Name of function is the sine wave. Then vertical division, hold per division, amplitude division, horizontal division, time per division, time period and frequency. So this type of reading we have to take by using the sine wave. So student, listen here. This is the sine and this is the wave. This is the linear position or mean position, and in this way this is the one sine wave, and यहाँ से दूसरी साइन वेव स्टार्ट हो जाएगा यहाँ तक. दिस इज द सेकंड साइन वेव. सो वी विल टेक रीडिंग by using the vertical division 1, 2, 3, 4, 5. So this is 1, 2, 3, 4, 4.6. This is the vertical reading. Keeping your mind, this is the previous manual. So here is 1.2 reading, but we get 1, 2, 3, 4, 4.6 reading. Listen here, because this in one division, here is the 4 lines and one lines contain 0.2. So here is 3 lines. So this is 0.2, 0.4, 0.6. So our vertical reading is 4.6. Then whole division. So student, this is the hold per division. Keeping your mind, this is the knob is hold per division. So we get 0.5 hold per division. Listen here, hold per division 0.5. So this is the one cycle. यहाँ से यहाँ तक अपन पकड़ेंगे तो ये एक साइकिल हो जाएगा और इसका डिवीजन हो जाएगा 4, और 1 सेंटीमीटर के लिए यहाँ पे 4 लाइन्स है, तो एक लाइन जो है 0.2 की है, तो ये 4.6 वर्टिकल डिवीजन हो गया. उसके बाद अपन को होल्ड पर डिवीजन लेना है, तो ये नॉब का यूज करते हैं. यहाँ पे देखो 1.5, 0.2, 0.1, 50 ऐसे यहाँ पे डिवीजन दिया है. तो ये जो यारो है 0.5 में दिखाई दे रहा है, तो अपना रीडिंग हो गया होल्ड पर डिवीजन. ठीक है. उसके बाद एम्पलीट्यूड पिक टू पिक रीडिंग लेना है. ये पिक है, ये पिक है, ये देखो 1, 2 और 1, यहाँ से 1, 2, ये यहाँ पे 0.6 से 0.4 तक इधर आ गया है.
तो एक पिक ये पिक हो गया। सो वर्टिकल डिवीजन का जो रीडिंग रहेगा एम्पलीट्यूड में वही रीडिंग सेम रहेगा, क्योंकि पिक टू पिक अपन ने रीडिंग लिया है 1 साइकिल का। वैसा ही दूसरे साइकिल का रीडिंग लेंगे तो दैट इज़ 1.2। देन हॉरिजॉन्टल रीडिंग। सो हॉरिजॉन्टल रीडिंग अपन यहाँ से लेते हैं, ये मीन पोजीशन है और ये एक पिक हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से एक पिक, बाद में ये दूसरा पिक। तो हॉरिजॉन्टल में कितना हो गया 1 2 3 3.2। लिसन हियर 3.2। ये देखो अपन ऐसा दिखा सकते हैं, कितना हो गया है 3.4 हो रहा है बेटा। और इसको ऊपर ले लेते हैं इन दिस वे। सो 1 2 3 और 3.4 ये हॉरिजॉन्टल रीडिंग हो गया। अभी आपका वर्टिकल रीडिंग, होल्ड पर डिवीजन रीडिंग, एम्पलीट्यूड रीडिंग और हॉरिजॉन्टल रीडिंग, ये 4 रीडिंग मिल गया तो आप इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये टाइम पर डिवीजन अपने को 5वां रीडिंग आप यहाँ से ले सकते हैं। ये देखो यहाँ पे टाइम पर डिवीजन दिया है, तो टाइम पर डिवीजन में ये 50 दिया है, ये है मिली सेकंड। और मिली सेकंड का अपने को यदि ट्रांसफ़र करेंगे सेकंड में तो 10⁻⁻6 से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मिली सेकंड का रीडिंग आता है यहाँ पे। तो मिली सेकंड को इंटू 10 टू, अभी यहाँ पे बता रहा है 50, तो 50 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा बेटा। तो ये टाइम पर डिवीजन हो गया। उसके बाद टाइम पीरियड आपको निकालना है। तो टाइम पीरियड का फार्मूला है 1/f, एफ भी द फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी का फार्मूला 1/t। सो यू गेट हियर टाइम पीरियड c इंटू डी। ये c का वैल्यू और d का वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टाइम पीरियड मिलेगा। और फ्रीक्वेंसी में भी 1/t ये टाइम पीरियड मिल गया है, तो उसको 1 को डिवाइडेड कर दो तो आपका फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा बेटा। तो इस तरीके से मैक्सिमम 3-4 रीडिंग आपको लेने का है। तो ये 3-4 रीडिंग आप ले सकते हैं ऐसा। बाद में इसको यदि छोटा करना है, बड़ा करने का है, तो वर्टिकल डिवीजन, होल्ड पर डिवीजन, एम्पलीट्यूड, हॉरिजॉन्टल और टाइम पर डिवीजन, ये 5 रीडिंग लेना है। 5 रीडिंग के बाद आपको टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रीडिंग आप ले सकते हैं। नाउ ये स्क्वायर वेव है बेटा। ये स्क्वायर वेव, ये देखो यहाँ से स्टार्ट हो गया, ये 1 साइकिल हो गया, फिर यहाँ से दूसरा साइकिल यहाँ तक आ गया है। तो ऐसा एक साइकिल है साइन वेव, तो ये इसको बोलते हैं स्क्वायर वेव, मतलब स्क्वायर टाइप में आएगा। और रीडिंग सेम रीडिंग वैसा ही लेने का है। जैसा ये वर्टिकल डिवीजन में 1 2 यहाँ तक एक साइकिल हो जाएगा, तो आपको ये रीडिंग इसको एडजस्ट करना पड़ेगा इन दिस वे। सो 1 2 3 4 पॉइंट, ये हो जाएगा तुम्हारा 4.4 हो गया। उसके बाद डिवीजन का रीडिंग आपका इधर से आएगा 0.5 बता रहा है, तो 0.5 हो गया होल्ड पर डिवीजन। उसके बाद एम्पलीट्यूड आपको लेने का है पिक टू पिक, सो 4.4 ही रीडिंग आएगा, 1 2 3 4.4। उसके बाद आपको हॉरिजॉन्टल रीडिंग लेना है इन दिस वे 1 2 3 के बाद 3.4, ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल रीडिंग रहेगा। और बाद में आपको हॉरिजॉन्टल रीडिंग के बाद टाइम पर डिवीजन लेने का है, तो टाइम पर डिवीजन आपका कितना है बेटा, देखो 50 आ रहा है। तो 50 में 50 इंटू ये है मिली सेकंड में आता है, तो मिली सेकंड को अपने को कन्वर्शन करना पड़ेगा सेकंड में, तो वो हो जाएगा 50 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा बेटा। और उसके बाद आपको टाइम पीरियड 1/f और फ्रीक्वेंसी 1/t यूज करके आपको फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा। ऐसा मैक्सिमम इसका भी 3-4 रीडिंग आप ले सकते हैं। ये आप ये प्रीवियस मैनुअल है तो उसमें ये रीडिंग लिया है 1.8, 0.5, 0.9 ये वर्टिकल रीडिंग। उसके बाद ये आया होल्ड पर डिवीजन, ये तुम्हारा एम्पलीट्यूड आया पिक टू पिक रीडिंग। उसके बाद हॉरिजॉन्टल रीडिंग, और हॉरिजॉन्टल के बाद ये 1.5 ये प्रीवियस रीडिंग है, तो इसलिए 1.5 था इंटू 10⁻⁻6 होना चाहिए, यहाँ पे भी 1.5 इंटू 10⁻⁻6। और ये फ्रीक्वेंसी इसको 1 से डिवाइडेड करोगे तो 6.4। तो ऐसा मैक्सिमम 3 to 4 रीडिंग आपको लेने का है। तो ऐसा रीडिंग लेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा स्क्वायर वेव, और प्रीवियस वाला जो अपन ने लिया है वो साइन वेव। सो स्टूडेंट, वी हैव टू कंप्लीट दिस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट
Now I stop here. Thank you very much.